किया है अभी जनवरी। ऐसा, अरे गुड। ओके, सो इट्स विजिबल, दिखाई पड़ रहा है सर थोड़ा बड़ा। यस सर। हाँ, क्लियर है। फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा लिखना सर, फॉन्ट साइज। ओके ओके, यस यस, नो प्रॉब्लम। So in the last class we were discussing about सर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन तक हो गया था। yes yes yes. So we are discussing about the mechanism of laser. So in which we have, this is that ground state E1, where we have taken total number of atoms, that is N1. This has been taken as another energy level, that is E2. When we give energy to the atoms of this ground state, and this energy density, this was taken as Q. So in energy values हमने इसको Q से denote किया था. So this Q energy is given to the atoms of this ground state. So out of N1 atoms, N2 atoms are excited up to higher energy level, and this is this is because of absorption of energy. That's why this is known as absorption transition. इसको हम लोग absorption transition कहा था. And the total number of absorption transition we have denoted, that is NAB. This is the function of total energy given. जितना energy हम लोगों ने दिया, that is total energy given. Delta T, this is the time up to the energy is given. As well as total number of atoms present over here. This is N1. This is the total number of atoms present here. So ये तीन पैरामीटर पर डिपेंड करता है आपने कितना एनर्जी दिया, कितना एटम प्रेजेंट था और कितनी ज्यादा टाइम तक आप एनर्जी दी. इसके साथ हम लोगों ने एक कोएफिशिएंट यूज किया था, that was V12. This is Einstein's coefficient, and this 1 2 actually gives the direction of transition. यहाँ पर transition 1 से 2 हो रहा है. That's why this is B12. And this B12 is known as Einstein coefficient. और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस किया था. The physical significance of this actually gives the probability of absorption transition. ये absorption transition की probability बताता है. So जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा, क्यों ये क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना है. क्वांटम मैकेनिकल फेनोमेना जो है वो probability based होता है. So this is the probability of absorption transition. At higher energy level, its lifetime was taken is equal to 10⁻⁸ seconds only. N2 का जो lifetime है वो 10⁻⁸ second है. इससे ज्यादा टाइम अगर कोई हम रुक गए तो ये एटम्स जो है वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आने लगता है. और जब ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है वो फोटॉन्स को ये इमिट करते हुए वापस आता है. सो दिस इज दैट इमिटेड फोटॉन्स. एंड प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उस पे किसी का कंट्रोल नहीं है. इसलिए सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिशन वी हैव टेकन, दैट इज स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन. इसको हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन कहा था. And the total number of spontaneous transition, this is, there is no energy given here, so this is the function of delta T, means time up to the system is left free. जब तक हम लोगों ने सिस्टम को छोड़ दिया ऐसे. Second, total number of atoms present there, this N2, the total number of atoms present there. तो ये N2 के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा एटम्स होगा उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होगा. With another Einstein coefficient, that is A21. ये A21 एक और Einstein coefficient यहाँ पे हम यूज किया था. 2 1 gives the direction of transition and this gives the total probability of spontaneous transition. अब यहाँ पर ये जो spontaneous transition, इससे हमें फोटॉन्स मिलते हैं और ये फोटॉन भी बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में फोटॉन्स मिलता है. लेकिन हम इसको ऐसा लेजर यूज नहीं कर सकते. इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे फोटॉन जो है वो रैंडम फोटॉन्स है, सारे डायरेक्शन पे x y z किसी भी डायरेक्शन पे रैंडमली जा रहे हैं. देयर इज नो कैरेक्टरिस्टिक्स. जब ये फोटॉन्स की कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, देयर इज नो डायरेक्शनल इफेक्ट, there is no polarizability, तो इसका कोई यूज नहीं हो सकता. इसलिए हमने इस फोटॉन्स को कहा था कि all these photons emitting through spontaneous process, this is useless photons so far.
अगर इसको ये यूजलेस क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड है, ऑटोमेटिक हो रहा है, स्वतः हो रहा है, स्पॉन्टेनियस हो रहा है। अगर इसको हम अपने यूज में लाना चाहते हैं तो हमने ये हायर एनर्जी लेवल पर फोटॉन पहुंच दिया। जब इस हायर एनर्जी लेवल पर फोटॉन देते हैं तो ये एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। ये जो फोटॉन्स, ये रैंडम फोटॉन्स नहीं है, कंट्रोल फोटॉन्स है, स्टिमुलेटेड फोटॉन्स है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे हम देते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट पे आता है। और जब ये ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा तो ये दो फोटॉन्स देता है, एक तो पहले से दबा के बैठा है, दूसरा फोटॉन हमने दूसरा एटम दिया तो फिर ये फोटॉन ये वापस आया तो दो फोटॉन्स उसके पास हो जाता है। सो वी हैव नाउ टू पैरेलल photons. So this is stimulation process because it is stimulated through this photon. So the total number of stimulated transition, this is controlled by, this is governed by three parameters now. Energy, total energy given. So this Q nu, this total energy given. Second, delta T, जितने टाइम तक हमने एनर्जी दिया, so this is delta T, time up to which the energy is given, as well as number of atoms present there. So this N2, this is the number of atoms present there. तो ये तीन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। Again we use another Einstein coefficient, this is B12, here we will use B21. So as a whole, this BAB, these are known as Einstein's AB coefficients. So again, the physical significance of this B coefficient is this gives the total probability of stimulated transition. ये stimulated transition की probability बताता है। इसके बाद फिर एक chain reaction start होता है। जैसे हमने एक फोटॉन दिया कि दो फोटॉन्स ये दे रहा है, दोनों फोटॉन्स in the same direction parallel है। So one chain reaction starts. This is one photon, एक एटम को stimulate किया, we are getting two parallel photons, ये दो एटम को stimulate किया और ये दो एटम को स्टिमुलेट करने से we will get four photons, ये four atoms को फर्दर स्टिमुलेट करेगा and then this four photons will give four more photons atoms. So this is now 8 and now when we get 16 photons and 16, 32, 64, 128, 256 and इसी तरह से मल्टीपल ऑर्डर में 5.2 बाइनरी ऑर्डर्स में आगे बढ़ते चला जाता है। जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, या नंबर ऑफ फोटॉन्स को भी अगर कोई हम ले ले क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी यूज कर रहे हैं, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंडिकेट द इंटेंसिटी, ज्यादा नंबर्स हो गया इंटेंसिटी बढ़ गई। अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो ये सारे के सारे जो है वो दैट इंटरफेरेंस करता है, और इंटरफेरेंस में तुम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ा होगा, इन सब में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में एक स्टेटमेंट दिया जाता है इफ वी हैव two photons, if this is one, this is another one, two photons, और इसमें अगर कोई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है then we will get one bigger photon, इसमें एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अगर इसका एम्पलीट्यूड अगर a1 के बराबर है, इसका एम्पलीट्यूड अगर a2 के बराबर है, then the total amplitude becomes a1 plus a2। वेव थ्योरी में इसको पढ़ाया जाएगा, a1 फिजिक्स में जब इंटरफेरेंस पढ़ोगे उस समय ये मैकेनिज्म तुमको बताया जाएगा। So intensity I, this is proportional to a1 square, this I2, this is proportional to a2 square, and here this I, the total is proportional to a square, and this is equal to k times a1 plus a2 square। तो इस तरह से उसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। लेट्स से वी हैव n2 photons, यहाँ पर हमारा है n2 atoms। अगर n2 atoms हैं तो हमारे पास टोटल photons कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स n2, तो नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल टू n2। एक एटम जो है वो दो फोटॉन दे रहा है, सो द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड दैट इज इक्वल टू 2n2, ये 2n2 के बराबर फोटॉन्स हो गए। अगर एक फोटॉन का एम्पलीट्यूड of one photon, amplitude of one photon, this is equal to a, अगर a के बराबर है तो टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो सब ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर दो फोटॉन को लिए, दोनों का एम्पलीट्यूड ऐड हो गया, वैसे सारे एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। द टोटल एम्पलीट्यूड that is equal to 2n2 multiplied by a, टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो a times हो जाएगा। सो दिस इज दैट एम्पलीट्यूड। अगर इंटेंसिटी की बात करें इतने टाइम्स, इसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, द टोटल इंटेंसिटी I इट इज इक्वल टू 4n2 स्क्वायर टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ अ सिंगल फोटॉन्स। तो इस तरह से इसकी इंटेंसिटी जो है वो इतनी हाई हो जाती है। सो इंटेंसिटी ऐसे इनहेंस होता है, तो नंबर्स ऑफ फोटॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, इंटेंसिटी। यहां पर एक चीज क्लियर है कि जो एटम्स अगर कोई ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचता है
जो एटम से ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचता है थ्रू दिस एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन, तो अल्टीमेटली आइदर थ्रू स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन या फिर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट पे आता है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ this absorption transition, this is actually equal to total number of spontaneous transition plus total number of stimulated transition। तो ये कहा जा सकता है spontaneous transition और stimulated transition का जो सम होता है वो absorption transition के नंबर्स के बराबर होता है। इसको थोड़ा मैथमेटिक्स करना चाहे, just put the value of this 3 and we can calculate it for q। so this b12 q nu delta t n1 is equal to 821 हाँ सर Okay, so this is B12 Q nu delta T N1. It is equivalent to the second term is this SP. This is A21 delta T N2 plus third one is that is B21 Q nu delta T N2 is the term, and now we can solve this for that energy term. So let us do some mathematics, and this is the only one mathematics in this particular chapter, in this particular part of that unit, that is the laser one. So we can solve it for q. So this delta t can be cancel and q term यहाँ पे इन दोनों में q term है, so this q nu and this delta t can be cancelled, and this is equivalent to b12 n1 minus b21 n2, it is equivalent to a21 multiplied by n2। so यहाँ से मैंने डेल्टा टी को कैंसिल कर दिया तीनों पार्ट से, जो कि कॉमन था, सेम टाइम हमने यूज किया। यहाँ पर क्यू न्यू वाला टर्म है, ये क्यू न्यू वाला टर्म है, दोनों को एक साइड हमने लिया है, क्यू न्यू को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ये टर्म मेरे पास आया। so this is the second term, I can solve it for q। so this q nu it is equal to A21 multiplied by N2 by this B12 N1 minus B21 N1 and N2, and now let us divide it by, so this is equal to, let's have, so this is N2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा N21 A21 by, यहाँ से मैं B12 को या B21 को मैं कॉमन निकाल देता हूँ, तो दिस इज N1 by N2 minus 1 if B12 it is equal to B21। just try to think। फिर से देखो मैंने इस मैथमेटिक्स में क्या किया, पहले मैंने लिखा कि एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन जो है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन एंड स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन। इसके बाद मैंने वैल्यू पुट कर दिया जो हम लोगों ने अभी तक उसके थ्योरी के बेसिस पर निकालने की कोशिश किया था। देन आई हैव सॉल्व इट फॉर क्यू। क्यू के लिए मैंने सॉल्व किया, तो जितने दो क्यू वाले टर्म था उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो b12 और b21 के बराबर आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्यू के लिए सॉल्व करने के बाद मैंने b12 और b21 को आइडेंटिकल लिखा, तो b12 और b21 को आइडेंटिकल लिखने से b21 यहाँ पे कॉमन निकल गया। ऊपर और नीचे को मैंने n2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया n2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a21
और यहाँ पे N2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे N1 by N2 आ गया. So I have this this is the term, so I can write this as Q nu, it is equal to A21 by B21 by N1 minus N2 minus. So this is the term I have obtained. इसके बाद थोड़ा सा और हम मैथमेटिक्स करने की कोशिश करें. हाँ, इसका रीजन हमें लिखना चाहिए. मैथमेटिकली हमने डायरेक्टली लिख तो दिया कि दिस B12 को हमने B21 के बराबर लिख लिया है. इसका कारण क्या है? Why? What is the reason behind that? अब पहले तो ये देखें कि सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस है this gives the total probability of absorption transition. This gives the total probability of stimulated transition. Means by equating these two, इन दोनों को हम एक साथ लिखते हुए हम क्या कह रहे हैं कि the total probability of absorption transition is equal to the total probability of stimulated transition. जो मैथमेटिक्स का फिजिक्स यही है, क्योंकि फिजिक्स में ये प्रोबेबिलिटी बताता है एब्सॉर्प्शन का, ये प्रोबेबिलिटी बताता है स्टिमुलेटेड का. मतलब स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, ये हम कहना चाहते हैं. ये कब होगा? जब सारे फिजिकल कंडीशंस आइडेंटिकल रखेंगे. तुमने ध्यान दिया होगा कि हम स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर भी एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन के लिए उतनी एनर्जी दे रहे हैं उतने टाइम तक, यहाँ पर भी उतनी एनर्जी दे रहे हैं उतने टाइम तक. ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जो है वो आइडेंटिकल होगा. इस चीज को लिखा जा सकता है व्हाई दिस इज सो, सिंस if all physical conditions are identical, then the total probability of absorption transition is equal to the probability of stimulated transition. एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन के प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा. कब? जब फिजिकल कंडीशंस जो है वो आइडेंटिकल रहेगा. फिजिकल कंडीशंस में जितना टेम्परेचर है, जितना प्रेशर है, जितना एनर्जी है, तो हम वो सारे कंडीशंस को आइडेंटिकल रख रहे हैं, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी जो है वो आइडेंटिकल होगा. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस B12 is equal to. हो गया? आगे बढ़े. यहां तक क्लियर है? No one is responding. What happened? सो गए क्या सब? Yes, sir. यस सर बोलती है. सो गई? कौन सो गई? सर सौम्य सर. आगे बढ़े. हो गया यहाँ तक? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So simple mathematics we are performing here. So this Q nu1 is equal to H1 by B21 upon N1 by N2 minus 1. Now N1 और N2 को थोड़ा और elaborate करने की कोशिश कर रहे हैं. This N1 is actually known. N1 is total number of atoms present at ground state. N2 that is the total number of atoms present at higher energy level E2. ये चूंकि मात्रा में बहुत ज्यादा है, then we use statistics. यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं. और फ्रॉम थोड़ा याद रखनी पड़ेगी तुम लोग को. फ्रॉम बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स ऐसा पढ़ाया जाता है. हालांकि स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. दिस N1 this is proportional to exponential of minus E1 by kT. This is here, this energy is E1. हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, T1 T2 नहीं रखा. टेम्परेचर इज आइडेंटिकल इन बोथ केसेस.
So this is proportional to E1, and N2, this is proportional to exponential of E2 by KT. So N1 by N2, this implies N1 by N2, it is equal to exponential of E2 minus E1 by KT, where K is Boltzmann's constant. Okay, so just we are putting N1 by N2, इसको हमने डिनोमिनेटर में रखा, ये ऊपर चला गया, तो ये नेगेटिव से हो गया पॉजिटिव, so this is E2 minus E1 by KT, simple mathematics. And since E2 minus E1 it is equal to H nu, हमने हर बार कहा है कि यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी लेवल का जो गैप है वो h nu के बराबर है, then this N1 by N2 can be taken as equal to h nu by kT. ये इतना टर्म आ जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे. So this q nu is equal to a21 by b21 by exponential of h nu by kT minus. ओके, यहाँ तक क्लियर है. अब इसके बाद मैं डायरेक्टली एक मैथमेटिकल टर्म यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो मैक्स प्लैंक ने अपने कैलकुलेशन में किया था. मैक्स प्लैंक का जो रेडिएशन मेथड है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वांटम थ्योरी यूज कर रहे हैं और हम क्वांटम फिजिक्स में इस टर्म पे हमने बात किया था. मैक्स प्लैंक ने ये कहा था कि एनर्जी जो है वो फोटॉन्स के टर्म में मूवमेंट करता है. सो अगर हम टोटल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना चाहें तो एक मेथड अडॉप्ट किया उन्होंने, और उस मेथड को मैं डायरेक्ट यहाँ पर मैथमेटिक्स यूज कर सकता हूँ. अगर बाय द वे किसी पार्टिकुलर एनर्जी सोर्स से टोटल कितनी एनर्जी निकल रही है ये अगर कैलकुलेट करना हुआ तो हम उस फोटॉन्स के बेसिस पर उसको कैलकुलेट करते हैं. एंड दैट फोटॉन्स इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हो? दैट एनर्जी जस्ट आई शुड राइट so that energy it is quantized, means it is integer multiple of h nu. H nu is the smallest one, n is integers where n is equal to 1 2 and so on. n is equal to 1 2 3 4 5. means अगर हमारे पास अगर बहुत सारे फोटॉन्स हैं तो कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी जो है वो सिर्फ h nu के बराबर होगा. कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे क्योंकि क्वांटाइज्ड है, कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी जो है वो 2h nu के बराबर होंगे, 3h nu के बराबर होंगे. इस तरह से डिफरेंट साइज के जो फोटॉन्स हैं ये उस सिस्टम पे रहेगा. अगर हमें उसको ऐड करना है, टोटल अगर कोई एनर्जी निकालनी है तो सारे h nu वाले फोटॉन्स को एक साथ कलेक्ट करेंगे, उसको जोड़ेंगे. 2h nu वाले फोटॉन्स को अलग से कलेक्ट करेंगे, उसको जोड़ेंगे. 3h nu वाले को ऐसे जोड़ेंगे और इस तरह से n h nu तक चलता चला जाएगा. कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, उन्होंने फिर एक सीरीज वाला मैथमेटिक्स यूज किया. डायरेक्ट रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो फ्रॉम प्लैंक्स hypothesis of radiation, Planck's hypothesis of radiation, the photonic energy density that is q nu delta nu, ये रिजल्ट तुम्हें याद रखनी पड़ेगी. So q nu delta nu, क्योंकि मैथमेटिक्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है and this is not in the scope of this unit. So this q nu delta nu, that is 8 pi h nu cube by c cube delta nu by exponential of h nu by kt minus 1. It's a c cube, yes. Okay, so 8 pi h nu cube by c cube d cube upon exponential of h nu by kt.
Now this is equation number 1, this is equation number 2, and we can compare these two equations by comparing equation 1 and 2. By comparing equation 1 and 2, देखो कंपेयर करें, यहाँ दोनों साइड डेल्टा न्यू दिख रहा है, ये वाले टर्म जो है वो ये वाले टर्म के साथ में है, तो दिस a21 by b21 it is equal to कितना होगा, that is 8 pi h nu cube by c. Okay, so this is the relation between these Einstein coefficient. ये derivation बहुत कम बुक में मिलता है, लेकिन ये कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि discuss Einstein's AB coefficient, write their physical significance and prove this. A21 by B21 is equal to 8 pi h nu cube by c cube. तो इसको प्रूव करने के लिए फिर तुमको वहां से शुरू करना है कि कैसे ये एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन के नंबर जो है स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन के सम के बराबर होता है, और बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हुए वहां तक लाना है, और उसके बाद डायरेक्टली ये रिजल्ट तुमको याद करनी पड़ेगी. अगर कैलकुलेट करना हुआ तो फिर तुम्हारे लिए थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, लेकिन अगर प्रूफ करना हुआ तो ये डिनोमिनेटर नंबरेटर जो है वो यही रखना है ना, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे. 8 pi h nu cube by c cube delta d nu. ओके, सो दिस इज a21 by b21. यहां तक एक चीज क्लियर है कि अगर हमें लेजर चाहिए तो एनी हाउ वी हैव टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन. हमें स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन के नंबर्स को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन होंगे उतने ज्यादा फोटॉन्स हमें मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी जो है उतनी ज्यादा हाई मिलेगी. लेकिन स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन के लिए दोनों भी तो जरूरी है. तो जब तक एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन नहीं होगा तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन कैसे होगा? अगर एब्सॉर्प्शन ट्रांजिशन हो रहा है, थोड़ा बहुत अगर लेट हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन की भी प्रोबेबिलिटी है. Ultimately, these three transitions, absorption, stimulated, and spontaneous, these three transitions are important, and this is the part of mechanism of releasing laser. तो ये लेजर रिलीज करने के लिए तीनों ट्रांजिशन की जरूरत है. अगर हम इसको लेबोरेटरी लेवल पर या प्रैक्टिकल लेवल पर अगर कोई लेजर में कन्वर्ट करें तो हमारा सिंगल टारगेट होना चाहिए. दैट टारगेट इज anyhow we have to increase the numbers of stimulated transition. हमारा टारगेट ये होना चाहिए हम किसी तरह से लेबोरेटरी में नंबर्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को बढ़ाएं. सो लेट अस सी हाउ वी कैन इंक्रीज द नंबर्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन. So this, let us compare this stimulated transition with absorption transition and stimulated transition with spontaneous transition. Why we are comparing? Because we are just trying to search the method, the technique by which we can enhance the numbers of stimulated transition. So this NHT, this is related to that stimulated transition 2 to 1 means that is B21, that is one energy term, delta T multiplied by N2, this is a term. Second, NAB, that is B12, there is energy term, delta T and N1. And we have taken this B21 is equal to B12. ये देखते हैं, ये कहते हुए कि सारे फिजिकल कंडीशंस आइडेंटिकल है तो प्रोबेबिलिटी आइडेंटिकल होगा. सो वी कैन कैंसिल दिस, वी कैन कैंसिल दिस, वी कैन कैंसिल दिस. सो दिस इज इक्वल टू n2 by n1. Directly we can write this. Similarly, in the second term, this is b21 q nu delta t n2 by spontaneous. There is no, so a21 there is no energy term, delta t multiplied by n2. So this is equal to
B21 by A21 multiplied by Q nu. Check this calculation. नेक्स्ट क्लास आप नहीं बड़े बहुत सारे काम रहते देख रहे हैं कितना डिस्टर्ब हो रहा है मेरी क्लास में. Okay, so these we are just comparing this stimulated transition with absorption transition, and that stimulated transition is spontaneous transition, and what is the physics coming up from this equation is our target is to enhance the numbers of stimulated transition. हम stimulated transition बढ़ाना चाहते हैं. अभी कैसे बढ़ेगा? Mathematics क्या कहता है? In order to increase NHT, अगर हम NHT की वैल्यू अगर बढ़ाना चाह रहे हैं, then the first condition ये कहता है कंडीशन में फर्स्ट N2 का मान N1 से ज्यादा होनी चाहिए. मैथमेटिक्स ये कहता है अगर आप ये चाहते हैं कि ये बड़ा हो NHT, तो मैथमेटिक्स टेल्स अस NHT का मान तब ज्यादा होगा जब N2 का मान N1 से ज्यादा हो. सेकंड, दिस इज द सेकंड कंडीशन. यहाँ पर ये तो कोएफिशिएंट हो गया, ये एक टर्म में यहाँ पर एनर्जी है. सो द सेकंड इज दिस इज Q nu की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. Okay, so these two conditions, one is N2 must be greater than N1, and second condition that is Q, this must have a greater value, ज़्यादा होनी चाहिए. These two conditions are known as laser obtaining conditions. So these two conditions are known as laser obtaining conditions. अगर ये दोनों कंडीशन एंड बोथ कंडीशंस आर एसेंशियल, ऐसा नहीं है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो लेजर मिल रहा है, ऐसा नहीं है. बोथ कंडीशंस आर एसेंशियल. अगर दोनों में से एक कंडीशन अगर फेल हो गया तो लेजर नहीं मिलेगा. So these two conditions are laser obtaining conditions. Means now our target is N2 का मान N1 से ज्यादा होनी चाहिए. Q का मान जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए. जो इनपुट एनर्जी दिया जा रहा है डिफरेंट लेवल्स यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए. So now next question is how we can fulfill these conditions. ये दोनों कंडीशन को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं? सेकंड कंडीशन ज्यादा तकलीफ नहीं है क्योंकि एनर्जी देना है. फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू कि कल के क्लास में डिस्कस करें. सर अगर ज्यादा है तो कल करते हैं, कम है तो भी कर लेते हैं. नहीं ज्यादा तो है, चालू करेंगे तो क्योंकि 1:30 बजे. So we will continue these two conditions in the next class, how we can fulfill these two conditions. And any doubt so far? किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. सर No, आप sir. यूट्यूब लेक्चर अपलोड करे हो ना सर? सर उसकी प्लेलिस्ट बना दोगे क्योंकि ना मैं देखा था तो लेक्चर 5 के दो लेक्चर है.
ऐसा क्या? चलिए हाँ देखता सर हूँ मैं। कुछ कुछ दो हैं